is Rashi Sahai and you're watching MediCircle. Today on our Children's Health Awareness series, we have Dr. Kanu Panda with us. Dr. Kanu Panda is a well-known pediatrician and is currently practicing in Simple Care Health. For the past 10 years, he has worked as a pediatrician. Hello, doctor. Welcome to MediCircle. Hi. Welcome, everyone. Okay, so let's begin. In 2022, Karnataka, West Bengal, and Andhra Pradesh has informed almost 60% of the India related to dengue. So, doctor, what are the 4 stages of dengue fever? Hi. Dengue is actually a viral disease. It is actually caused by a group of virus known as flavivirus that is actually spread through the bites of mosquitoes, most especially the female Aedes mosquito, which are known and notorious for biting in the daytime. So when the virus is passed from a female Aedes mosquito to a person, he initially goes through the phase known as the asymptomatic incubation phase. So primarily there are 4 phases. The first one is the asymptomatic incubation phase, when the virus replicates inside the body of the host. The second phase comes the febrile phase, when the person gets fever and other symptoms. Then comes the non-febrile phase or the critical phase, which lasts for another 1 to 2 days. And finally, the recovery phase or the convalescent phase. So we need to understand the progression of the dengue disease in a person during the asymptomatic incubation phase, which may last for usually 5 to 7 days, up to 14 days, even 2 weeks. In that phase, the patient doesn't have any kind of symptoms, but the virus replicates inside the body and increases the number. But when the febrile phase starts, which can last for another 5 to 7 days, at that time, the patient has got high-grade fever, body pain, headache, there may be rashes, there may be vomiting. The kid may have even loose stools also. During that period, the patient usually comes to us and we test the kid for dengue positive. Then when the fever waits off, when the fever is gone, then comes the critical phase for the 1 to 2 day. At that duration, usually the kid loses blood either through minor bleeding from gums or may throw up too much of vomiting, landing up into dehydration. The baby may go into hemorrhagic fever, may go into shock or any kind of critical illness that mandates hospitalization, even in critical care units like ICUs. And after that phase, when the diuresis phase comes up, when the fluid starts getting accumulation, that phase is known as convalescent phase. At that time, the most dangerous part is the fluid overload, when the fluid which is leaking through the capillaries into the third phase again starts coming in, and the patient may develop another complication known as fluid overload. So primarily there are 4 stages: incubation phase, febrile phase, recovery, convalescent, critical phase, and then the recovery or convalescent phase. Okay. So doctor, what are the basic symptoms जो कि डेंगू से रिलेटेड हम बच्चों में देख सकते हैं? बेसिकली बच्चों में बुखार जो आता है, बहुत तेज बुखार आता है, जैसे वायरल फीवर में, किसी भी वायरल फीवर में आ सकता है। उसके साथ उनके मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द हो सकता है। जो बॉडी पेन होता है वो खास करके बैकएक हो सकता है, लिम्ब पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक जो डेंगू के एक लक्षण है, रेट्रोऑर्बिटल पेन, जो आंखों के पीछे दर्द होना, वैसे हो सकता है। और बॉडी पे रैशेस आ सकते हैं, आपके छोटे 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 रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, जिन्हें हम पेटेची बोलते हैं। और कई बार अगर उनकी प्लेटलेट की संख्या जो है अगर घट जाती है, तो उसमें जो गम में ब्लीडिंग है, कई बार वो भी आ सकते हैं। ये सारे लक्षण देखने में मिलते हैं। और कई बार छोटे छोटे बच्चों में जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी को दस्त हो गया, डायरिया हो गया, सीवियर वॉमिटिंग होने लगा, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। और कई बार लीवर की साइज भी बढ़ जाती है, तो पेट में भी दर्द होने लगता है। कई बच्चे ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि उन्हें 2-3 दिन से बुखार है और बहुत तेज उनका पेट दर्द कर रहा है। सो दीज आर दी सिम्टम्स इन डेंगू इन किड्स। ओके, तो घर पे हम डेंगू से कैसे बच सकते हैं? द बेस्ट वे इज द प्रिवेंशन। द प्रिवेंटिव मेडिसिन सबसे बेस्ट है कि हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बच्चों को मच्छरों से दूर रखना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस जो अपने घर के आसपास हैं, जहाँ आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन होते हैं, हमें उन सब जगहों को कूड़ा कचरा जो कलेक्ट होता है उनको दूर करना है। कोई आर्टिफिशियल सेसपूल कलेक्शन को प्रमोट नहीं करना है। खास करके छत के ऊपर बहुत से कबाड़ और बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पे कि आर्टिफिशियल रेन वाटर या कोई भी स्टेगनेंट वाटर रह जाता है, जहाँ पे कि डेंगू के मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं। तो हमें खासकर
उनका ख्याल रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं शाम को स्कूल से आने के बाद, उनको फुल कपड़े पहनाने हैं, फुल स्लीव शर्ट्स, फुल स्लीव पैंट्स पहनाने, ताकि वो मॉस्किटो बाइट से बचे। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि उनको मॉस्किटो बाइट्स ना हो। और घर पे जब भी सोते हैं रात को, तो हम मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। So, ऐसे कौन से साइंस है जिससे कि हमें पता चल सकता है कि या द डेंगू इज नाउ ऑन अ सीवियर लेवल? Yeah, actually the WHO is nicely categorized dengue complication, dengue clinical scenario as dengue without warning signs and dengue with warning signs. So what are the warning signs? जैसे मैंने पहले बोला, तेज पेट में दर्द होना, सीवियर पेन एब्डोमेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग मतलब कंटिन्यूअसली उल्टियां होते जाना, सीवियर डिहाइड्रेशन होना, जिसके दस्त होने के कारण सीवियर डिहाइड्रेशन होना, या फिर ब्लीडिंग का शुरू हो जाना। अगर स्टूल में ब्लैक कलर के स्टूल आते हैं, स्टूल में ब्लड आने लगता है, या गम से ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर जो स्किन में जो पेटेचियल रैसेस है उनकी संख्या बढ़ जाती है, जो कि इंडिकेटर होता है कि बॉडी में प्लेटलेट की संख्या जो घट रही है, या फिर लेथार्जिक रहना मतलब सुस्त पड़ जाना, एक्टिव ना रहना, और या फिर जनरल सेंसोरियम का घटना, बातचीत ना करना, ना बोल पाना, या फिर सेंसोरियम में कोई बदलाव आना, उन चीजों में। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि डेंगू अभी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। हाई ग्रेड फीवर पैरासीटामोल देने के बावजूद अगर बुखार ना छूटे, 3 दिन 4 दिन से ज्यादा बुखार रहना और सीवियर वीकनेस लगना, इन सब चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है बच्चे का प्लेटलेट जो है वो घट रहा है, या फिर हिमाटोक्रिट बढ़ रहा है। तो हमें इस दरमियान किसी भी डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे, ब्लड के रूल आउट करने पड़ेगा कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। तो ये सारे लक्षण हमको देखने पड़ेंगे। तो क्या डेंगू होने पे ये नेसेसरी है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना है? देखिए, डेंगू अगर माइल्ड है, जब बस ओनली फीवर है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, और हमने रूटीन टेस्ट लैब में करके देख लिया है कि प्लेटलेट की जो संख्या है 1 लाख के ऊपर है, और कोई हीमो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, हेमाटोक्रिट नहीं बढ़ रहा, और पैरासीटामोल देने के बाद, ओआरएस पीने के बाद, कोकोनट वाटर पीने के बाद, फ्लूइड्स पीने के बाद बच्चे की डिहाइड्रेशन करेक्ट हो रही है, फीवर घट रहा है, कोई वार्निंग साइन नहीं है, देन देर इज नो नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। बट अगर कोई भी वार्निंग साइन हमें नजर आता है और ऐसा लगता है कि प्लेटलेट 1 लाख से नीचे जा रहा है, या कोई मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे कि लिवर का इन्वॉल्वमेंट होना, जॉन्डिस का शुरू होना, सीवियर पेन होना, पेटेची रैसेस ज्यादा बढ़ जाना, और खास करके स्किन में जो पेटेची रैसेस वो ज्यादा दिखना, इन सब चीजों में अगर हमें दिखे तो वी शुड इमीडिएटली गो फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। कई कई बार आईसीयू में एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है, कई कई बार वार्ड में भी मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन सीवियर पेन एब्डोमेन अगर है, persistent vomiting हो रहा है, severe dehydration है, in that case baby should be admitted to the hospital. So, ऐसे कहते हैं कि पपाया लीफ के जूस कंज्यूम करने से प्लेटलेट्स इंक्रीज होती है, तो कितने हद तक प्लेटलेट्स बढ़ सकती हैं? एक्चुअली पपाया लीव्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। इतना उस पे मॉडर्न मेडिसिन में उतने साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड आरसीटी या रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इतने डेटा अवेलेबल है नहीं। मगर कुछ कुछ ट्रायल और कुछ कुछ स्टडी में ये देखा गया है कि पपाया लीव्स के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैरिका पपाया लीव्स के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि जो वायरस रेप्लिकेट करता है, डेंगू वायरस हमारे बॉडी में, उसके मेम्ब्रेन को वो डिस्टेबलाइज करता है, जिससे कि वायरस की रेप्लिकेशन शक्ति घट जाती है और वायरस की संख्या बॉडी में नहीं बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, वो अलग तरह के जीन होता है हमारे बॉडी में जिसे बोलते हैं ALOX12 जीन, एलॉक्स 12 जीन, जिसकी संख्या वो बढ़ा देता है, जिसकी एक्सप्रेशन बढ़ा देता है, जिससे कि प्लेटलेट की प्रोडक्शन जो है बॉडी में वो थोड़ी बढ़ जाती है। कुछ कुछ डेटा कहते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, इसको और ज्यादा साइंटिफिक बैकअप की आवश्यकता है। वैसे मॉडर्न मेडिसिन में वी यूजुअली डोंट प्रिस्क्राइब करिका पपाया लीव्स फॉर एज अ ट्रीटमेंट फॉर इंक्रीजिंग प्लेटलेट्स, rather we go through the usual protocol that has been described by WHO for treating any dengue or complications of dengue। लेकिन कैरिका पपाया लीव्स ओवर द काउंटर भी आजकल बहुत लोग लेके आते हैं हमारे पास। आई वुड से मोस्टली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एंड मॉडर्न मेडिसिन में इसका ज्यादा कोई रोल है नहीं। Okay, doctor. So, thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thanks a lot. Thanks a lot for having me on your show, and thanks a lot.